Assalamu alaikum viewers and listeners. Cricket World Cup 2023 एंड हो चुका है. We thought we would be having a rest day, but पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आपको पता है you would not be having any sort of rest day. But that is what we love as being content creators. That is what we feast upon. आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुका है फॉर ऑल इम्पोर्टेंट टूर टू ऑस्ट्रेलिया. All important in terms of WTC cycle, of course, new captain Shan Masood will be taking the guard. How his performance as a captain goes, that would be important. But there is one more important thing to this Shafqat Shabbir, all the way from Lahore. CricWick पे feature करते हैं being cricket content executive. He has been to our ARD show previously as well, in women's podcast as well. हमने इनका solo show भी किया था. You can check it out. So yeah, Shafqat भाई, taking precious time out. क्या हाल चाल है? हाँ जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर हाल चाल एज मच एज हाल आर कंसर्न तो वर्क वाइज इट्स बीन वेरी टायरिंग रोज ही मैच होता था ये नॉकआउट स्टेज पे आगे कुछ अंदर से फ्री डेज थे बट आई थिंक एक तो वो कंटेंट क्रिएशन टाइप और अपने प्लेटफॉर्म को देखते हुए तो वो बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन और फोकस जो है वो उस तरफ लगा रहता है हर टाइम लाइक यू डोंट गेट टाइम टू सिट डाउन एंड रिलैक्स सोना भी है फिर आपने खाना भी खाना है फिर आप यू आर बैक ऑन द वर्क टेबल और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट जो है जो हमारा मेन फोकस होता है बीइंग लाइक क्रिकेट मीडिया पीपल तो वो तो ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे होते हैं लाइक उस दिन जब इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स वो सब कुछ हुआ मैं देख रहा था 60 मिनट के अंदर 4 बड़ी न्यूज थी 5 बड़ी न्यूज तो सबको कवर करना इट टेक्स अ टॉल ऑन यू and I feel like I'll have to take maybe a days or two like complete shutdown of social media और सब कुछ उसके बाद जाके थोड़ा कुछ sanity restore होगी but I'm still enjoying this क्योंकि cricket of course it is the love of my life so doing this choosing this as a livelihood this is work ये सारे चैलेंजेस साथ आने थे बट अगेन उसका मजा ये है कि जब इस तरह के चैलेंजेस ये वर्कलोड आता है तो फिर आप उस तरह डेड टायर्ड नहीं फील करते जिस तरह आप कोई और जॉब कर रहे हैं और प्रेशर आ जाए क्योंकि उसमें आपका पैशन नहीं है यहाँ पे पैशन है तो इसको मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ बट टायरिंग भी है Uh, okay. Yeah. Wonderful. That's perfect. And of course, I'm more than delighted to be joined by my co-host for today. Karachi से join करें. We have some sort of Karachi and Lahore connections, and that is kind of teaser. And that is kind of teaser because PSL drafts are 1 month away. Not 1 month, like they're 2 to 3 weeks away. So many PSL rivalries over there at ARD as well. So stay tuned. That was just a teaser for our upcoming content. Okay, Hosana, first segment start करते हैं. You have something to talk about surprise omissions from the squad. So yeah, Hosana, over to you. Okay, so going through the presser, obviously it was kind of shocking to see the presser from Wahab Riaz. Like, he was really blunt to say, like, to put it that way, he was really blunt. I was shocked that he put it, hardest Rose exclusion, he put it in that way. But surprise exclusion would be Herrera, Mohammad Herrera, of course, because he's been scoring runs continuously since I think the last seasons. The 2023 season was not that great for him, but he was still the eighth run scorer overall, and including Siam, of course, he was seventh run scorer, but obviously he played less matches than Herrera. But I still feel like he got into the squad too early because I think half the matches that
Mohamed Herrera has played and the Australian tour, it will be a really, really, really tough tour. And we are sending Siam as a debutant. And Imamul Haq, he has been facing troubles with short balls. So I think we will have to debut Siam eventually, and I think it would really take a toll on him. I, I hope not, but I feel like it will take a really bad toll on him if he gets a debut there. And moving on to yeah, so moving on to, of course, the bowling department, I would say, like, including Wasim Jr., he's a T20 bowler and he's not played that much FC matches. मेरे हिसाब से I think 9 matches play किए. ODI में he has good numbers, I would say, but I don't know why did they include him um, in the test squad when we have pacers who have been toiling in domestic since years. So yeah, that's my opinion. So moving on to you guys. या यार हुरैरा का ड्रॉप करना बनता नहीं है, गिवन के इतने टाइम से हम उसको एक तरह से हम उसको कैरी कर रहे थे। श्रीलंका वाली सीरीज में हम उसको लेके गए और श्रीलंका सीरीज में लग रहा था कि शायद उसका डेब्यू हो जाए, बट अगर हम उसका रिकॉर्ड देखें 21 years ऑफ एज, 32 मैचेस, 2700 Yeah. रन, उसमें 800 हैं उसके। स्ट्राइक रेट भी वो अच्छे स्ट्राइकर से खेलता है, हेल्दी स्ट्राइकर से, ऐसा नहीं है वो ज्यादा गेंदें लेगा भाई। he loves to play his shot, एक्सप्रेस करता है अपने आप को, और स्ट्राइक रेट का आई थिंक 68-70 के करीब है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो somebody who loves to play the shots, उनको आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको एक कुएं पे लेके गए तो दूसरे पे नहीं लेके जा रहे। उसके अलावा उनका एक जो ग्रोथ है या जहाँ से वो आए हैं सियालकोट से, तो सियालकोट का तो हमें पता है दे प्रोड्यूस टेक्निकली कंप्लीट प्लेयर्स। एक तरह से उनकी जो वहाँ पे अकेडमीज होती हैं, वहाँ पे जो क्लब सर्किट है, वो सब कुछ, तो वहां से आके पाकिस्तान अंडर-19 के लिए वर्ल्ड कप खेलना और फिर ऊपर आना, सेकंड 11 भी काफी खेली है इन्होंने नॉर्दर्न के लिए, और फिर उसके बाद इनके सीजन काफी अच्छे लगे और इन्होंने 4000 बॉल्स फेस किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इस तरह के बंदे को लाजमी साथ कैरी करना चाहिए कल को, अगर आपको कोई बैकअप ओपनर चाहिए। बट इसमें हुआ क्या है, आई थिंक थोड़ा सा इफ आई लुक इनटू द माइंडसेट ऑफ सिलेक्टर्स, एक तो उन्होंने ना उनका लाइक जो वो मेंशन कर रहे थे वहां रियाज के, यार हमने रेड बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को तरजीह देनी है, हमने दूसरों की तरफ लाइक उस तरह से कम नहीं। तो उन्होंने जब शायद चार्ट्स या नंबर देखे होंगे ना टॉप रन लीडिंग रन स्कोरर इस साल की कैप्टन ट्रॉफी के, तो वहां पे शायद हुरैरा मिस कर गया होगा, क्योंकि वो तो पैशनेट थे अपनी तरफ से कि भाई हमने तो रेड बॉल परफॉर्मर्स को या कैप्टन ट्रॉफी परफॉर्मर्स को देना, मगर वो शायद हुरैरा इस दफा टॉप 5 में नहीं था, नॉट श्योर, बट मैं उसको फॉलो कर रहा था। फैसलाबाद रीजन की तरफ से वो एज अ गेस्ट प्लेयर खेल रहा था कैप्टन ट्रॉफी, और शायद उसने 100 किया है, ज्यादा तो उससे बड़े रन नहीं हुए, बट ही वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट। परफॉर्मेंसेज उसने पहले की हुई है, रेड बॉल में उसने अपना मेडल प्रूव किया हुआ है, बट शायद वहां पे वो चीज मिस कर रही है। और साइंस की जो ट्रेजेक्टरी चली आ रही है करियर के, पाकिस्तान के लिए T20 भी खेल के लीग्स में भी अच्छा कर रहे हैं, और फिर सीपीएल से आके उसने डोमेस्टिक के जो 3-4 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के फाइनल पे, या उससे पहले एक मैच था उसने 100 कर दिया, फर्स्ट क्लास में फाइनल पे शायद उसने डबल 100 किया, डबल आई एम नॉट श्योर, लेकिन 100 तो लाजमी किया शाम सूद के साथ बैटिंग करके। तो उसने आते साथ ही टुक अवे द लाइमलाइट, एंड उसका ठीक है, अगर इनको लगता है कि वो आना चाहिए तो ही डिजर्व्स दैट। अबाउट टाइम के हम उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना शुरू करें। लोग बातें कर रहे हैं कि यार शाम को ऑस्ट्रेलिया ने लेके, सॉरी फाइन को ऑस्ट्रेलिया ने लेके जाना चाहिए था, बट आई डोंट, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसने खुद कहा वहां पे यार फेल हो गया तो फिर भी स्टैंड बिहाइंड देम। तो अगर ऑस्ट्रेलिया टूर तो आपके 3-4-5 साल के बाद आपका आता है टेस्ट में, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपने की हो, तो अगली दफा जब ऑस्ट्रेलिया टूर आएगा तो ऑफकोर्स साइन मेंटली और ज्यादा रेडी होगा। कमिंग बैक टू हुरैरा एक्सक्लूजन, अगर मैं सेलेक्ट होता तो आई वुड हैव ट्राइड कि मैं उसको साथ कैरी करूं किसी ना किसी, ऑलरेडी आपका 18 का स्क्वाड है, बट स्टिल यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्लेयर्स। ये जो आपके अब्दुल्ला तो ऑलरेडी आगे परफॉर्मेंस तो पक्का भी हो गया, ये जो आपके साइम है, ये जो आपके हुरैरास हैं, और वहां ने बैकअप्स की भी बात की कि हमने स्ट्रगल इसलिए किया कि हमारे पास बैकअप्स नहीं थे, हम 2-3 प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे थे। तो आप जो वो बैकअप वाली बात है, तो हुरैरा जैसे बंदे को डिस्कार्ड नहीं किया, चलो डिस्कार्ड करके दिया, रियली होप कि उसको कॉल किया होगा, उसको बताया होगा कि यार आगे
5 टेस्ट मैचेस का होम सीजन है तो हमें तुम्हें ले जाना है। एक आपके जब इस एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी है, उस एडमिनिस्ट्रेटर को ये देखना है कि प्लेयर ने तो खेलना है, प्लेयर का तो दिल है खेलने में, लेकिन आपने ये जज करना है कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, कौन सा प्लेयर कहीं पे आके आपको मैच जितवा सकता है, कौन सी कंडीशन में रन देगी। तो उस पैरामीटर से देखा जाए तो हुरैरा हैड the temperament to score runs or to adapt himself to different conditions, या वो लर्निंग भी कर लेता है। यार साउथ अफ्रीका में वो खेला है अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो वहां पे अगर आप उसकी कुछ नॉक्स देखें, उसका जो हेड का बैलेंस है, उसका जो टेक्निक है, तो वो एक तरह से है कि वो इस तरह की विकेट्स के ऊपर कर सकता है। मतलब हम सेना की बात करते हैं तो सेना में ही उसने टीन एज में वनडे मैच खेले हैं, यूथ ओडीआई, तो उसके उसके ऊपर यू शुड हैव टेकन द पान, बट एनी हाउ वो नहीं है, तो आई फील बैड फॉर हिम। To point it out that you said that he was not in the top 5 performance, but the thing is, Sam was not even in the top 5 run scorers. The top 5 run scorers were Shabzada Farhan, I think. So those guys are not looked upon. I think recency bias. Sam Ayub has played T20s. He has been in the squad around. I think the selectors have a recency bias with the with all the squad choosing. yeah. Oh, yeah. Oh, इसमें Mumtaz, इसमें एक wonderful एग्जांपल है, put. इसमें एक एग्जांपल है कि Sure. साउथ स्किल को हम 2021 से कैरी कर रहे हैं, उसको वनडे कैप दी थी पहले, और बातें होती थी कि साउथ को टेस्ट में लेके आओ, और फाइनली हमने आके उसको 2022 के एंड पे टेस्ट किया। Yeah, nice annotation that one. Okay, इसी से segue कर लेते हैं दूसरा, एक तरह से kind of non-issue for me that would have been, but it is the hot topic. पहले जरा हमने हुरैरा को spotlight देना चाहे थे, but शफकत भाई, you all know that is not for the sort purpose of politics, but हारिस रऊफ के साथ जो हारिस रऊफ के ऊपर जो स्टेटमेंट थी, it was okay harsh for me. अभी मैं ज्यादा रिएक्शंस नहीं शो करूंगा, I would let you to put up the stage. Kind of harsh because Wahab himself did the same a few years back. He should have understood when the player is asking for a time to regain his form, even to get back his mentality as well. Or of course, first thing first, that is physical fitness or Sena ki traveling and all those sort of stuff. So for me, okay, आप exclude कर रहे हो, that is fair to me. But yeah, Shafqat bhai, to close out, it could have been phrased better. इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं शुरू, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी एक तरह से बात उसी तरफ डायरेक्ट कर दे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के ऊपर होते रही. You should not have make it such a mountain out of a molehill. So yeah, Shafqat bhai, what are your reactions and then your analysis over that situation? सबसे पहली बात तो ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी नए आए हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजों पे वो कर रहे हैं, मतलब डेलिब्रेशन ले रहे हैं, हमें ये करना है वो करना है, उनके पास एक विजिबल पैशन नजर आता है उनकी बातों में भी कि वी हैव टू मेंड पाकिस्तान क्रिकेट, वी हैव टू पुट पाकिस्तान क्रिकेट ऑन द राइट वेज। उसी ग्राउंड पे उसी पैशन में ही वहाब रियाज ने शायद ये समझा कि यार मुझे ये बात कर देनी चाहिए। अब मुझे ये भी पता है कि शायद उसको मे बी उसको ना कहा गया हो कि आप इस तरह से बात करें, या उसको ही कुड हैव पुट इट इन अ बेटर वे। अब यहाँ पे मैं अक्सर एक पॉइंट करता हूँ, लाइक आई बीन वॉचिंग क्रिकेट, आई बीन वॉचिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और पाकिस्तान में भी। यार जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, देखो यहाँ पे कल्चर है, कल्चर तो हर जगह है कि यार पास्ट क्रिकेटर को ना लेके आ जाओ, फॉर्मर क्रिकेटर को, उसने क्रिकेट खेली है, वो आपको ना बताएगा, इंसाइट्स देगा। इंसाइट्स तो वो लाजमी देगा, वहाब रियाज ने तो टेस्ट मैचेस खेले, उसको पता है टेस्ट मैच में क्या रिक्वायरमेंट होती है। मगर ये जो अफेयर्स होते हैं ना, मैन मैनेजमेंट, लोगों को डील करना, क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटरशिप को बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है, सारा ध्यान प्लेयर्स पे दिया जाता है। इट ऑल बिगिंस विद एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन और विद वन विन, वो चाहे तो बंदा ऑस्ट्रेलिया जाए, वो चाहे तो बंदा ऑस्ट्रेलिया ना जाए, वो चाहे तो किसी की एक बैड रैपो पैदा हो जाए, वो मीडिया में जैसे बात करें, उनको जिस लाइट में भी उनको डिस्कस करें, वो चाहे तो प्लेयर की अच्छी रैपो बन जाए, वो चाहे तो प्लेयर को डिफेंड करें। तो आई थिंक जब आप हायर कर रहे होते हो फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू नीड अ पर्सन जिसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स
जिसकी मैन मैनेजमेंट और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की हो कि आपने हर इवेंट पे प्लेयर ड्रॉप भी करने हैं, प्लेयर सेलेक्ट भी करने हैं। और सबसे एक अजीब बात होती है जब किसको कहते हो कि यार फॉर द टाइम यू आर नॉट गुड इनफ, हम तुम्हें पिक नहीं कर रहे, हम तुम्हें बाद में पिक करेंगे। फिर उसके अफेयर को हैंडल करना है कि आपने उसको ड्रॉप क्यों किया या उसने पुल आउट किया, इस केस में, हारिस वाले केस में। तो ये चीज आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटर को खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और मे बी आप जो है वो इवेलुएट भी करेंगे, रिफ्लेक्ट भी करेंगे कि ठीक है मुझे क्रिकेट की सारी अंडरस्टैंडिंग है, मैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हूँ, बट शायद इस चीज को अच्छे से हैंडल किया जाए। अब बात करती है हारिस रऊफ ने जो किया। देखो हारिस रऊफ की जो करियर ट्रेजेक्टरी है वो आपके अंडर 19 सेटअप से नहीं आ रहा, वो आपके सेकंड लेवल सेटअप से नहीं आ रहा। वो तो एक जगह पे ट्रायल देने गया था, बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड वे ऑफ ब्रेकिंग आउट इनटू द प्रोफेशनल सर्किट है ना, कि ही केम एट एक ट्रायल्स पे आया और ट्रायल्स पे आके उसने कहा कि यार मैं तो प्लेयर बनना चाहता हूँ। उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको T20 की ट्रेनिंग दी, उसने भी ग्रो किया, लर्न किया। किसी बंदे को भी आप पकड़ लो, उसको 1 लाख पर मंथ दो 1 साल के लिए, तो वो तो अपने आप को जैसे उसको कह दिएगा वो वैसे तैयार करेगा। तो 17-18 में उसने आपको एज ए T20 बॉलर ट्राई किया, व्हाइट बॉल। तो वहां पे फिर नॉर्दर्न की तरफ से वो चला गया 2019 में, कायदर ट्रॉफी में वो हिस्सा था उसका मोहम्मद वसीम के साथ। मोहम्मद वसीम जो है बोल वसीम वाले, जो हमारे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, उनके अंदर उसने रेड बॉल के कैंप्स भी किए, ट्रेनिंग भी की, उसके पास अच्छी हैवी बॉल्स हैं। लेकिन मुझे फर्स्ट हैंड एक मतलब पता चला है जिन लोगों ने उसको फेस भी किया है कि वो आएगा 3 ओवर बहुत कमाल के करेगा, इवन 150 भी क्लिक करेगा। मतलब एक प्लेयर मुझे बता रहे थे कि उसने इस्लामाबाद डायमंड ग्राउंड में उन्होंने उसको फेस किया था एक मल्टी डे रेड बॉल मैच में। तो उसने आगे पहले 2-3 ओवर तो भाई उसने किसी को बॉल टच नहीं करनी दी, जहां से बॉल्स गुजर रही है, नॉर्मल पेस नहीं है जो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलती है। लेकिन उसका मसला ये है कि उसकी तैयारी हुई है 4 ओवर की, तो वो 4 ओवर करेगा, उसके बाद उसकी गैस खत्म हो जाएगी। अब वो उसकी गलती नहीं है, उसको तो जिस तरह से start की है, ही इज ऑलरेडी स्टार्टिंग। तो उसका 3-4 साल में वो जो सारा जोर है वो उस तरह का बना हुआ है। अब जब आपने प्लेयर बना रहे होते हैं ना 4 डे के, जो लंबी क्रिकेट खेले, सुबह आए आपको बॉलिंग मिल गई, आप सारों ने फील्ड पकड़ लिए, 5 ओवर एक जगह पे करने हैं, 5 फिर करने हैं, 2 फिर करने हैं, फिर लंच ब्रेक होगी, फिर 4 करने हैं, फिर 4 करने हैं, फिर 6 करने हैं, फिर टी ब्रेक होगी, और फिर शाम को आके दोबारा बॉलिंग करनी है। इस तरह की जो चीजें होती है ना 4 डे क्रिकेट में, वो आपको तोड़ देते हैं। अब प्लेयर का कसूर नहीं होता, प्लेयर ने तो डिमांड्स ऑफ द डे के मुताबिक चलना है। तो सिस्टम ने बनाना था हारिस रऊफ को, सिस्टम ने उसको कहना था कि भाई यहाँ पे 4 डे क्रिकेट भी खेलो, बिकॉज वी लुक एट यू एज अ पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट फॉर आवर रेड बॉल क्रिकेट। अब हुआ ये है कि वो बंदा इतना लंबा वो खेल के आया है, सीजन खेल के आया है। अगर आप 2023 में देखो ना, न्यूजीलैंड वाली सीरीज शुरू में जो 3 मैच सीरीज, इससे पहले वो इंजरी में था, पिंडी में उसको इंजरी हुई थी। न्यूजीलैंड वाली सीरीज, उसके बाद PSL आ गई, फिर न्यूजीलैंड वाली सीरीज आ गई, फिर वो इंग्लैंड चला गया, उसने 100 खेला, उसने वहां पे जाके खेला था यूएसए में, यूएसए ओपन खेली, यूएसए ओपन की बोली। अच्छा उसके बाद फिर वो आ गया आपके एशिया कप में, आ गया एशिया कप में, फिर वो इंजर्ड हो गया, दोबारा वो वर्ल्ड कप में चला गया, वर्ल्ड कप में फिर उसके स्टैंड हुए। अब जो बंदा इस तरह की फिटनेस तब फिर है, एंड ठीक है, यू आर वेल इन योर राइट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर टू थिंक ऑफ हिम एज अ पोटेंशियल रेड बॉल प्लेयर, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में हिट द डेक हार्ड जाके बॉलें निकाल के दे, जैसे वो BPL में निकालता था। स्टेडियम्स का तो उसको पता है, लेकिन फिटनेस नहीं है। 3 टेस्ट मैचेस हैं, एंड आई एम डेड श्योर कि आपका जो बॉलिंग अटैक जो भी जा रहा है, जिसने भी बॉलिंग करी है, 700 से 800 ओवर निकालने हैं आपने 14 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक। आपके बॉलर्स ने दे हैव टू गो थ्रू 800 और 900 ओवर्स। तो अब उसने ये चीजें देखी तो पता है, तो वो मेंटली रेडी नहीं था। मतलब ये कॉलें हो रही थी कल रात या परसों रात, तो ये शायद आपने जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस टाइम पे देखना था, लेकिन उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते। तो ये मल्टी लेयर प्रॉब्लम है कि नए एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने ये भी देखा पीछे वो क्या कर रहा था, तो ये बात है। मेरा इस सिचुएशन में मेरा ये स्टांस है कि आप हारिस को सपोर्ट करो। आपने उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी, जनवरी 2020 ऑनवर्ड जब उसको बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट T20 कैप दी थी, उसको आपने वर्ल्ड टूर्नामेंट्स खिला दिए। ठीक है, उससे इंडिया में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर फॉर यू, एंड यू हैव अगेन गॉट a T20 वर्ल्ड कप कमिंग राउंड द कॉर्नर इन 6 मंथ। तो इस तरह के प्लेयर्स की आपने वो करनी है, ख्याल रखना होता है, मेंटली उनको आपने श्योर करना होता है कि वी आर बिहाइंड यू, इट्स ओके अगर आपने पुल आउट कर लिया है, बट लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स, और हमें आप व्हाइट बॉल पे यहाँ पे चाहिए होगी। तो उससे प्लेयर जो होता है ना, उसकी सिक्योरिटीज खत्म होती है। तो आई थिंक मैंने टच कर दिया सारी चीजों को कि एडमिनिस्ट्रेटर का भी अंदर कसूर है, प्लेयर को भी खुद देखना चाहिए। प्लेयर अगर इंडिया में था
तो जब आपका वो इंग्लैंड वाला मैच है, पहले आप हफ्ता फ्री थे, उस टाइम पे ये नहीं था। उस टाइम पे भी प्लेयर देख सकता है कि यार मैं किस तरह से जाना चाहूंगा, या मतलब मैं एक एक्साइटिंग सी बात सोच रहा था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होता, लाइक एक प्लेयर ये भी कर सकता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर से बात करो कि जो ऑस्ट्रेलिया में सीजन का पहला मैच होता है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया कम हार्ड एट यू, उसमें बड़ी मार पड़ती है। अगर आप पिछले 4 5 6 समर्स का कोई भी काम देख लो ना, तो आप सेलेक्टर से बात करो, कोच से बात करो, कप्तान से कि यार मैं पहला टेस्ट मैच खेलूंगा, ठीक है, पहला टेस्ट मैच खत्म हो रहा है आपका 18 दिसंबर को, और फिर 3 दिन की ब्रेक है शायद, ये 4 दिन, उसके बाद शायद Yeah. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। तो आप मुझे ये महीना दें, Correct. इस महीने में ना मैं 2 हफ्ते अपनी फिटनेस पे काम करूंगा, 2 हफ्ते में अपनी मैच फिटनेस और बॉलिंग पे काम करूंगा, और मुझे दूसरे टेस्ट मैच में ले गया। इस तरह के कुछ ना कुछ हो सकती थी बातें, लेकिन उसके माइंड में था कि यार पूरा टूर है, शायद मैं टूर जाऊंगा, भी है, मेरा करियर खराब हो जाएगा, तो नहीं गया। तो कॉन्वर्सेशन थोड़ी डीप हो सकती थी, और बोर्ड जो है उसको हर हाल में बैक करना चाहिए, हारिस का उपचार। Well, okay, so Yeah. really Hussaina, well कुछ put ऐड out. मैंने करना चाह रही थी। Yeah. So it was just really well put out. I'm just saying that the system is so flawed कि हमारे यहाँ पे T20 cricket has been a focus, like शदाब, उस्मान, उसामा मीर, एंड वही हुआ वर्ल्ड कप में हमारे साथ, वही हमारे साथ टेस्ट में हो रहा है। सो आई फील लाइक कि वो डोमेस्टिक सिस्टम इतना ज़्यादा फ्लॉड हो रहा है कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स नहीं आते आगे, वो T20 में जो परफॉर्म करते हैं वही टेस्ट स्पॉट के लिए जा रहे होते हैं। तो आई फील लाइक दैट इज द होल फॉल्ट ऑफ द डोमेस्टिक सिस्टम। Yeah. Or okay, I still am not over that press conference. But anyway, मैं ये move on करूँ कि they are setting it up कि अगर कोई फेलियर होता है तो we have something to backlash on. उन्होंने ऑलरेडी से एक तरह से अपना एक्सक्यूज सेट आउट कर दिया कि यार ये नहीं था एंड वी लॉस्ट, हमारे कोई सीनियर बॉलर ही नहीं था, शाहीन इंजर था, ये था वो था। सो या I will try to put on a thread or something like that. But moving on, we have to keep the discussion moving. I would like to put on the comment of Iris Khan. He is talking about Usman Qadir should be playing national T20 and Zahid Mahmood should have been called in for the camp. Shafqat bhai, please clarify on that. I think so. Usman Qadir का उन्होंने नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक दफा वो बोल गए थे, then he like rejogged his mind. ये जो आरिस भाई कह रहे हैं कि उस्मान कादिर को होना चाहिए था नेशनल, तो उस्मान कादिर जाएगा नेशनल T20 कप खेलने। कैंप आपका शायद कल से शुरू हो रहा है, 20 से 24 का मैंने जो सुना था, और वो शायद पिंडी में होना है, एनसीए में नहीं होना आपका ये जो टेस्ट सीरीज का कैंप है। तो 20 से 24 ये लोग वहां पे होंगे, और 24 को नेशनल T20 कप स्टार्ट हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद उस्मान पहला मैच मिस करेगा, लेकिन उस्मान सारा नेशनल T20 कप खेलेगा, उसका मतलब नहीं है। और जाहिद को भी बुला सकते थे, लेकिन जाहिद को एज नेट प्लेयर बुला सकते थे, लेकिन मे बी जाहिद की तरफ दे आर नॉट लुकिंग एज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। वो 35 साल का हो गया ऑलरेडी, उसको टेस्ट एंड ट्राई आउट कर चुके हो आप। तो उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे थोड़ी सी माइंड से साफ पता चल रही है, हफीज और वहाब दे नो के लंबी क्रिकेट या जो ट्रेनिंग कैंप्स है दे डू हेल्प। और जिस सिचुएशन में हमारे स्पिनर्स, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने शदाब को कहा है कि भाईजान आओ आप इधर पिंडी में आके जरा बॉलिंग करो, नेट्स के अंदर लंबी बॉलिंग करो। और नवाज को भी बुलाया है, बहुत अच्छी बात है कि उन प्लेयर्स को वो बिन नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने वर्ल्ड कप था, इतना बड़ा स्टेज था, और आपने वहां पे हमें बिट्रे कर दिया परफॉर्मेंसेस वाइज। तो अच्छी बात है कि दे आर पुटिंग देयर ट्रस्ट इन एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग देयर स्किल्स एज स्पिनर्स। तो वो 4 दिन नहीं है, बट आई रियली होप कि 4 दिन तो ज्यादा सारे ओवर्स करें सारे स्पिनर्स जो है। बस एक चीज और, वहाब जो इतनी मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को पुट आउट कर रहा था, उसमें ही कुड हैव डन अ फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो उनके लीड स्पिनर भी और बैकअप स्पिनर भी ऑफ स्पिनर है, नेथन लायन और टॉड मर्फी। तो नेथन लायन को फेस करने के लिए यू कुड हैव ट्राइड के आपके जो ऑफ स्पिनर्स हैं, मुबस्सिर खान है, कासिम अकरम भी है, इवन के अरहम एक है लड़का, उसने भी परफॉर्म नहीं किया, बट आप एयर मार कर सकते हो। या इस तरह के ऑफ स्पिनर को आप 4 दिन के लिए बुलाओ ना, पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेनिंग कराओ, कल को वो जब डोमेस्टिक खेलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ही और होगा, उनको पता होगा कि हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। शायद 1 2 ऑफ स्पिनर्स को भी बुला लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। काशिफ अली का भी नाम हालांकि रिप्लेसमेंट
अरशद इकबाल को जैसे उन्होंने बनाया है, Yeah. I'm not sure कि वो कैंप में है या नहीं, but they could have called काशिफ अली as well in the camp, and I would feel like 18 member squad में अरशद इकबाल का भी So नाम होना चाहिए. Kashif is Okay, in the enough camp. of Kashif is in points Yes. over there. Okay. So yeah, I think Kashif is joining. Okay, to move it forward, yeah, Husana, I think so. I am going to put out a statement. फिर शफकत भाई की राय लेते हैं इस पे. शफकत भाई, the question being, what is the strongest suit of our Pakistan Test squad? To me, that has to be batting, and more specifically, middle order batting. With the likes of, okay, सब फॉर्म में है. टेस्ट की फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स पैचेरा वर्ल्ड कप बाबर आजम का इनटू द रन्स, बट आउट ऑफ द फॉर्म यू वुड से. रिजवान भी काइंड ऑफ सिमिलर, गुड स्टार्ट्स, बट देन जो लास्ट 4 or 5 मैचेस आप कह सकते हैं कि बुरे गए. सऊद शकील, सलमान अली आगा, दोज प्रोवाइडिंग गुड सॉलिड इनफ. अब बात वही आ जाता है कि हाउ डू यू कोप विद देयर ओपनिंग स्पेल्स. एंड नाउ इसी पे मैं लिंक करना चाहता हूँ, दैट इज शान मसूद के, क्योंकि बैटिंग नंबर एंड बैटिंग अप्रोच उनके लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो, ही नोज हिज लिमिटेशंस, बट ही हैज वर्क टू रीडिफाइन हिज गेम. और वो श्रीलंका वाली सीरीज में मोर प्रेफर लाइक more obviously नजदीक है. Up that again, different circumstances altogether, but he was your best batter right out there, more than Babar Azam, more than Rizwan. So, do you think these batters have got enough mental and technical rigidity to like score around 300-ish innings against those top class bowlers? Shafqat bhai, what have you to say on our batting options over there? सबसे पहले तो शान की बात है. ओवरऑल चलो शान के करियर पे मैं ये कहूँगा, 2013 2023 10 साल में 56 मैचेस. अगर आप उसका ओवरऑल मतलब उसके फेजेस में करियर है. टू बिगिन एज अ टेस्ट प्लेयर, मिडवे जाके पता चला कि ही कैन प्ले ओडीआई क्रिकेट एज वेल, क्योंकि उसने अपना मैटर प्रूव किया था. और फिर उसके बाद जाके पता चला कि ही इज टी20 प्लेयर एज वेल, गुड इनफ टू प्ले रिव्यू पाकिस्तान एट वर्ल्ड कप. तो बड़ा इंटरेस्टिंग शान का करियर भी है. और दैट आल्सो शोज कि कितना कीन ही इज टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ प्लेयर who can play around in different formats and different conditions. Hard work wise 100 out of 100. हार्ड वर्क बहुत करता है, गेम को अंडरस्टैंड भी करता है. उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल प्लेयर होता है ना उसकी तरह उस तरह नहीं है. उसको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला है. कुवैत में पैदा हुआ, कराची में आके उसने अपनी एज ग्रुप क्रिकेट खेली. और एज ग्रुप क्रिकेट से मतलब लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हिज डैड हेल्प्ड हिम एंड ऑल दैट, लेकिन एज ग्रुप क्रिकेट से he came into Pakistan under-19. पाकिस्तान under-19 से उसके बाद प्ले बैक टू इंग्लैंड और फिर वो पाकिस्तान आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते. तो एक्सपोजर वाइज अगर आप बात करें, हार्डवर्क वाइज बात करें, तो शान इज लाइक ब्रिलियंट ऑन दोस टर्म्स. बस एक चीज है कि उनकी अपनी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक की सक्सेस है, जो उन्होंने 150 से ऊपर फर्स्ट क्लास खेले हैं, 10-15 हजार रन कर दिए हैं कंपेटिटिव क्रिकेट करियर में, उसको वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर सके. उनकी ओवरऑल जो एवरेज है ना, अगर आप तीनों फॉर्मेट्स की निकाल के देखें, शायद वो अंडर 30 है. कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो 10 साल में अपने आप को उस तरह से वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके. मगर उसमें भी ग्लिम्पसेस थे. काले कले 2015 उनके डेब्यू पे, 2020 मैनचेस्टर टेस्ट, और इसके अलावा आई थिंक 1-2 और इनिंग्स थी जो उनके बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन थे. तो शान का मैं ये कहूंगा कि ही इज वन ऑफ द बैटर्स जो वहां पे ही कैन डिग इन, वहां पे थोड़े रन्स कर सकता है. क्योंकि लास्ट टाइम जब आप गए थे तो शान इज द गाय हु प्लेड 2 टेस्ट मैचेस देयर, और उसका जो बैटिंग एवरेज थी वो 39 के करीब थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. और मैंने उसके कुछ क्लिप्स भी देखे थे. वो साइड पे अकेडमीज में या क्लब्स में जाके ट्रेनिंग भी कर रहा था, बड़ी टफ ट्रेनिंग कर रहा था. तो शान को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हमारे खिलाफ आने वाला है. तो वी कैन ट्रस्ट समबडी लाइक शान टू
स्टिक इन देयर और वो कोशिश करेगा कि बाकी जो हमारे यंग प्लेयर्स है जैसे साउद है उसको भी वो बताएगा कि इस तरह से आपने बैटिंग करनी है, इस तरह चलना है। या जैसे हमारा अब्दुल्ला है या ऑफ कोर्स बाबर आजम ने तो वहां पे अच्छे खासे रन किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसको ऑस्ट्रेलिया के डिशेस को बहुत अच्छे से पता है। तो बैटिंग मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है। शान बीइंग द लीडर ऑफ द टीम वो एक्ट करेगा उस तरह से कि वो टीम को एग्जाम्पल के साथ लेके चले। और हमने देखा है कि उसके अंदर कैपेसिटी है टू प्ले बिगर इनिंग्स। और 2023 में एक थोड़ा सा शिफ्ट आया उसकी बैटिंग में। जो लोग ये भी बात कर रहे थे कि श्रीलंका में जो वो बैटिंग कर रहा था थोड़ी ट्राइंग टू प्ले ब्रिस्कली, और उस टाइम पे पाकिस्तान वे की भी बातें हो रही थी। तो मैंने एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है इस कैडजन ट्रॉफी में। शान ने स्कोर 341 रन एट एन एवरेज ऑफ 56 और उसका स्ट्राइक रेट 103 है। जितने लोगों ने भी उससे ज्यादा रन किए हैं ना उसमें किसी बंदे का स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर नहीं है। तो इस कैनन ट्रॉफी में उसका एक वो जो इंटैक्ट था वो नजर आ रहा था। रियली होप इट टेक्स दैट टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। बाकी जो हमारी बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर आप देखो अब्दुल्ला इज अ रूकी, पहला ऑस्ट्रेलिया टूर है उसका। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला बड़ा एक्साइटेड होगा। और जैसे हमने देखा कि अब्दुल्ला ने इतनी ज्यादा लिस्ट वनडे क्रिकेट नहीं खेली होती, लेकिन इंडिया में जाके उसने कंडीशंस को अडेप्ट किया, उसने लर्न किया और जाते साथ ही बड़ी इनिंग्स खेल दी। तो जो बंदा बड़ी बड़ी इनिंग्स जिसने खेल ली है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, और वो अंडर 19 डोमेस्टिक सर्किट में 2014-15 से है, उसको मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जैसे लेट्स से कि तेज नारायण चंद्रपॉल पिछले सीजन गया था, उसको वहां पे शायद टेस्ट कैप मिली थी और उसने एक दो इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली थी 50-60 की। आप वहां पे ओपनिंग स्पेल निकाल जाओ तो यू डू गेट योर चांसेस टू स्कोर रन। वहां पे अगर आप थोड़ी पैटी मिस्टेक्स या डर ना जाओ ना ऑस्ट्रेलिया से तो फिर आप रन कर सकते हो। हनुमा विहाड़ी को देख लो। वो जब गया था 2021 वाले टूर में सिडनी में, वो खड़ा हो गया था, वो गया शायद सिडनी में या मेलबर्न में, वो आउट नहीं हो रहा था। तो मुझे अब्दुल्ला के साथ के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जब वो जाएगा। पहले टेस्ट में बेशक वो परफॉर्म ना करे, पहला टेस्ट तो भूल जाओ, मगर दूसरे तीसरे टेस्ट में विजिटिंग टीम हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करती है, रिफ्लेक्ट करती है। पहले टेस्ट मैच में थप्पड़ लगते हैं, कोई भी आप उठा के देख लो, कोई भी विजिटिंग टीम है पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया विल कम रियली हार्ड एट यू। वो सारी 20 विकेट भी लेंगे और वो 400 रन भी करेंगे। पहला टेस्ट में शायद हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर भी फेल हो जाए, बट उसके बाद जो दूसरा टेस्ट या तीसरा आता है ना उसमें प्लेयर्स जाग गए होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये बॉलर इस फॉर्म में ये तो अब्दुल्ला के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। शान के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बाबर कैप्टनसी चली गई है और लिटरली हमें एक फर्क नजर आएगा। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि देखो जब मेरे माइंड में ये नहीं है कि मैंने कल 11 कौन खिलानी है, ये जिसको निकालना है उसके साथ मैंने बात क्या करनी है, कि जिसको लेके आना है उसके लिए मैंने क्या लॉजिक देना है, कोच के साथ मैंने क्या प्लानिंग करनी है। तो जब ये चीजें मेरे माइंड में नहीं होगी तो मैं ट्रेनिंग करके आके अपने रूम में और फिर सुबह मैच पे मेरा दिमाग तो ये होगा कि मैंने अपना बैट कैसे लेके चलना है, मैंने रन कैसे करनी है, मैंने फ्लाम बॉलर के साथ कैसे प्लान करना है। जो रूट बड़ा एक नॉरिश हो गया था आई थिंक जब उसकी वो टेस्ट कैप्टनसी उन्होंने से ली थी। तो होपफुली बाबर आजम एक अच्छी स्टैट में होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में तो उसने बहुत खेला है, 2012 में उसने खेला है, अंडर 19 वर्ल्ड कप वहां पे खेला है, उसके बाद उसने 16 में खेला है, उसमें क्रॉस फॉर्मेट अच्छा खेला था, 19 में खेला है और फिर अभी 22 के वर्ल्ड कप में खेला है। तो ऑस्ट्रेलिया का उसको अच्छे से पता है। बाबर हमारे लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि हम इनिंग्स लंबी करें, वो जो आप कह रहे हैं कि 250 से 300, 300 से 350, उसमें बाबर बड़ी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि बाबर अपनी शॉट्स वो वहां पे रुकेगा नहीं, बाबर अपनी ड्राइव खेलेगा तो वो स्कोर बोर्ड को चलाने की सलाहियत रखता है। और मजे की बात जो मुझे बाबर के सीन में लगती है ना, उसने बहुत फेस किया है इन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। उसने हैजलवुड, स्टार्क, पैट कमिंस को तो उसने बहुत खेला है जब वो यहाँ पे भी आए, तो वो कॉन्फिडेंट होगा, मतलब उसके लिए कोई एलियन कंडीशन नहीं होगी। उसके बाद अगर हम आ जाए कीपर पे तो आई स्टार्ट विद रिजवान, क्योंकि रिजवान की शायद हमने एक इनिंग्स देखी है ब्रिस्बेन में थी 90 और समथिंग 2019 के टूर में, तो रिजवान भी स्कोर लेता है वहां पे। और रिजवान ने इंग्लैंड में अगर आपको याद हो ही वाज मैन ऑफ द सीरीज इन 2020 वाली सीरीज में, जॉइंट मैन ऑफ द सीरीज। तो हाँ भी कर लेते हैं रन, और शायद ये लोग सरफराज के साथ चले जाए क्योंकि उसको रेस्ट देना है रिजवान को। रिजवान ने बहुत कीपिंग की है 9 मैचेस में, 90 ओवर सॉरी 9 मैचेस में। तो आई थिंक ये वाला जो हमारा बैटिंग अटैक है। और फिर इमाम का है, चलो यार इमाम को कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चांस दे दो। ऑनेस्टली टू स्टार्ट विद मुझे इमाम के ऊपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो अपना एक बड़ा बुरा वर्ल्ड कप लेके आ रहा है और हमने देखा है कि वो बिल्कुल ही वन डायमेंशनल बन जाता है अगर उसको अंडर प्रेशर डालें। चलो वो अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन अगर उसको आप मेंटली आप उसके पीछे पड़ जाओ ना 4 बॉलर मिलके कि हमने इसको शॉर्ट बॉल ही मारना वहां पे पकड़ा दो, वो दे देगा। तो
अगर तो इमाम के साथ जाते हैं तो इमाम को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जाना होगा, रन करके देने होंगे, क्योंकि इमाम ने T20 डेब्यू किया ना 2019 में, तो आई एम डाउटफुल फॉर इमाम। अगर वो उसको चांस देते हैं तो ही शुड ग्रैब दैट विद बोथ हैंड्स, क्योंकि उसको पता होना चाहिए पीछे अवाम बहुत है, पीछे लेफ्टिस्ट बहुत है, ओपनर्स बहुत हैं, और मिडिल ऑर्डर वाले लोग भी ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। देन कम्स के फहीम के साथ मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, उसकी बॉलिंग से ज्यादा मुझे फहीम की बैटिंग के साथ है। एंड आई रियली होप कि फहीम प्लेयर्स द फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, क्योंकि फहीम आपको वो डर्टी वर्क करके दे सकता है कि जब आपके बॉलर थक जाएंगे ना तो वो 7-8 ओवर का स्पेल भी निकाल के दे देगा। जब आपके ऊपर से विकेट गिर जाएगी तो फहीम आपको इनिंग्स बिल्ड करके दे सकता है। फहीम ने वेस्ट इंडीज में अर्ली विकेट्स के बाद इनिंग्स बिल्ड की है आपके मेन बैट्समैन के साथ। फहीम ने न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी की है, वो जो नसीम शाह वाला टेस्ट मैच था कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसमें पहले जिम्मेदारी फहीम अशरफ ही ले रहा था बैटिंग के साथ। और फहीम की बैटिंग यूसुफ ने काम किया हुआ है पिछले 2-3 सीजन में, तो उसकी बैटिंग बड़ी इंप्रूव है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बैटिंग इज गोइंग टू बी our strongest suit, but still this Australian team is going to come hard at you. भाईजान 36 रन वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा वो खड़े थे, अय्यर खड़ा था, शुभमन था, उन्होंने उनकी जो एक रिसेंट फॉर्म है उसको नहीं देखा, उन्होंने प्रोफेशनली एक अच्छे क्लिनिकल तरीके से में बॉलिंग करवाई एंड दे गॉट द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्फ। तो ऑस्ट्रेलिया इस तरह से अप्लाई करता है आपको बॉलिंग में, तो आई थिंक पाकिस्तानी को टफ चैलेंज फेस होगा, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो काम ना हो कि 100, 150, 200, 250, 300, 350 वाला काम कर सकते। सॉरी इट वाज अ लॉन्ग रैंट, that was more than welcome. It was really good. So moving on to our bowling, our bleed pacer obviously Shaheen Shah Afridi, but we have seen like कोई concerns दिखे वर्ल्ड कप ODI क्रिकेट में कि उसकी जो बर्स्ट फर्स्ट स्पेल वाले बर्स्ट है वो ऐसे नहीं आ रहे, इतने इम्पैक्टफुल नहीं हो रहे जितने होते थे इन द पास्ट। बट टेस्ट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कोर्स, बट हाउ डू यू सी कि वो शहीन वो कैसे मतलब कि एज अ लीड पेसर वो में कितना इम्पैक्ट, वो ऐसे इम्पैक्टफुल होगा जितना वी आर रिलाइंग ऑन हिम, और विल ही लाइक फिटनेस कंसर्न्स के साथ वी आर लाइक मिसिंग द कॉज। अरे शहीन को भी टीम मैनेजमेंट को बड़े तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि शहीन बहुत क्रिकेट खेली है, अभी भी वो 23 साल का है और इस साल भी उसने बहुत क्रिकेट खेली है और इंजरीज भी उसके साथ साथ रही है। पिछले अगर आप देखो 2022 ऑनवर्ड्स हर साल कोई ना कोई इंजरी आ जाती है, और मतलब उसकी बॉडी अभी भी यंग है, अभी भी वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा, 23 साल का बंदा है, 26-27 में यू गेट टू योर फिजिकल लाइक प्राइम। तो आई थिंक शाहीन को यू हैव टू सी कि अभी जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप करोगे, यहाँ पे आप डोंट पुश हिम दैट हार्ड, इतना ज्यादा उसको तंग ना करो, जस्ट बेसिक बेसिक्स है, बिकॉज ही वोंट फॉरगेट हाउ टू बॉल, ही वोंट फॉरगेट कि क्या करना है। और उस यू रेयरली सी कि 23 साल का बंदा है और उसने 27 टेस्ट, 53 ओडीआई और 52 वनडे खेल लिया ऑलरेडी और 250 से ऊपर आउट कर लिया, क्योंकि 23 साल के बंदे तो नहीं करते, बहुत कम लोग भी होते हैं जो इस तरह करते हैं। और हर जगह पे खेला, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, वेयरएवर यू सी दैट। उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास स्किल भी है, बात आती है उसकी फिटनेस पे। तो आपने जो पूछा ना उसमें टीम मैनेजमेंट, आई रियली होप कि हफीज इस चीज को देखेगा कि शॉर्ट स्पेल्स करवाओ अभी उससे इधर कैंप में भी, और फिर आपका बड़ा लंबा एक वो ट्रैवल होगा, तो जब आप वहां पे जाओ तो वहां पे भी 2-3 दिन उसको थोड़ा रेस्ट दो। आई थिंक 26 या 27 को हम लोग जाएंगे वहां पे, मे बी यतम के पास जा रहे हैं, वहां पे भी यू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी। अगर मैस्योर चाहिए, अगर कुछ फिटनेस वाइज चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, वहां पे समर है, यहाँ पे विंटर्स है, और ऑलरेडी शहीन को पता है कि वो पिछले सीजन वहां पे था। तो मेरे ख्याल में उसकी बॉलिंग और वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसके फिटनेस को आपने ज्यादा देखना है। और फिर आपका है शायद 6 या 7 तारीख को आपका कैनबरा में 4-डे मैच है। अब उस 4-डे मैच में भी ऐसी हो कि उसको वो तरीके से यूज करें, यू गेट इन टू मैच फिटनेस उस मैच में। उसमें आप फर्स्ट इनिंग्स में अगर हमारे पहले बॉलिंग आती है, जब भी हम बॉलिंग करते हैं उससे आप 4 से 6 ओवर का स्पेल करवाओ, बीच में एक स्पेल करवाओ, और फिर सेकंड इनिंग्स में आप उससे कर सकते हो कि मतलब आप उससे 12 से 16 या 18 ओवर करवाओ अराउंड 4 डेज, और उसकी तैयारी अभी से करो, दैट विल गेट हिम इनटू मैच फिटनेस। और फिर आपके पास 3 दिन होंगे, 3 में से 1 दिन उसको रेस्ट करवाओ, टोटल कंप्लीट रेस्ट, और फिर जो 2 दिन है उसमें वो मैच की तैयारी करें, देन ही गोज इनटू द फर्स्ट टेस्ट जो है वो जो स्टेडियम में, न्यू स्टेडियम में वाकई में कुछ है। तो उस फर्स्ट टेस्ट में जब वो जाएगा तो विल बी इन गुड स्टैट। अभी भी लोग बात कर रहे थे कि उसकी
वो वाली पेस नहीं रही, 21 वाला शेड नहीं नजर आ रहा। तो थोड़ा सा वो फिटनेस पे काम करें, उसको रश ना करें, उसको एग्जॉस्ट ना करें, क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया टूर। आप जितने भी अच्छे हों, डेल स्टेन लोग भी गए हैं वहाँ पे, रबाडा लोग भी गए हैं, बस पिछले साल साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ गई, तो बॉलर वहाँ पे रुल जाते हैं, विजिटिंग टीम्स के बॉलर रुल जाते हैं। इंग्लैंड को आपने देखा होगा 21-22 वाली एशेज में, तो आपने बॉलर्स को बचा बचा के रखना, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा लो नहीं करना। ये बड़ा चैलेंज होगा हेड कोच हफीज और स्पेशली कैप्टन शान मसूद के लिए, क्योंकि बॉलर को बनाता और बिगाड़ता भी कैप्टन ही है। इन फर्स्ट प्लेस कैप्टन ने शॉट्स लेने होते हैं कि इसका स्पेल यहाँ पे आना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए, इसको अब नहीं करना। तो ओवर बॉल भी नहीं करना उसको, क्योंकि 23 साल का वो टूट भी सकता है। और उसके बाद आपने उसको मतलब इन 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 स्मॉलर बर्ड्स उसको तैयार करना है टेस्ट मैच के लिए। जब टेस्ट मैच आता है तो फिर आप उसको जितना यूज कर ले, क्योंकि वहां ऐसा होगा कि पार्टनरशिप लगाएंगे, लाबुशेन, स्मिथ, वार्नर, ये लोग बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लगाएंगे। तो वहां पे होता है कि यार अब 70 रन हो गए हैं पार्टनरशिप के, अब शहीन को ले आओ वापिस। कमेंटेटर भी कह रहे होते हैं कि यार अब शहीन के ओवर करवाओ। तो वो जो सारी एनर्जी है ना जो आप बचाएंगे, वो वहां पे चाहिए होगी। फिटनेस होगी तो वहां वहां पे फुल थ्रोटल पे बॉलिंग करेगा। तो आई रियली होप कि वो उसकी फिटनेस वाइज ख्याल रखें। अभी भी आपके पीछे हैं 23 दिन, जो 23 डेज, और 14-15 डेज अगर फिटनेस का अच्छा ख्याल रखा जाए तो वन फील्स रियली गुड अबाउट हिमसेल्फ। Yeah. Or I think so. I am really intrigued to see Shan Masood as tactician. Uh, I would like to see कि डेविड वार्नर और जो भी ओपन करे उसके साथ आप एक फील्डर पीछे ले लो, शाहीन अफरीदी के लिए भी एक फील्डर लाइक कवर ड्राइव पे पीछे ले लो या गली रीजन में पीछे ले लो। दैट इज नॉट अ डिफेंसिव मूव। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा, एशियज में भी ऑस्ट्रेलिया ने टेम्पलेट एशियज में सेट किया था, लोग तब भी क्रिटिसाइज कर रहे थे यार ये दूसरे तीसरे ओवर में कमिंस ने वो कवर ड्राइव के लिए पीछे निकाले थे। दैट इज नॉट अ डिफेंसिव कैप्टनसी, यू आर जस्ट न्यूट्रलाइजिंग देयर स्टैंड। China है जहाँ पे उसने पैट बॉल्स करा दी, nobody will be able to play it out. You just don't leak too many scores. जब भी जाते हैं हम ऊपर से पहले सेशन में नवे 100 स्कोर पड़ा होते हैं, and then you are nowhere, फिर we have no place hiding. So I really hope Shan Masood along with Hafiz do these sort of tactics moving forward. Very short segment on spinners, although Abrar Ahmed, wonderful rise so far, a kind of harsh miss on World Cup, but again, एक तरह से उसके लिए भी unfair होता कि still too early and being pushed into the World Cup. अब एक ऑस्ट्रेलिया का टूर है, our whole nation, अब क्योंकि World Cup में नहीं खेला, our whole nation would be treating him as some sort of messiah, right? कि यार अब इसने ना जादू करके दिखाना. But again, we must realize conditions not going to suit him. उसे टाइम लगेगा पिच के साथ सूट होने में. So do you think he is going to give some sort of 3 or 4 wickets per match, or still you think it is too early for him? How do you see his tour going out there? सबसे पहली बात तो ये है कि अबरार ने रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेली है, 5,000 बॉल्स करवा चुका है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टेस्ट, और वो दूसरे आप मिला के देख लो। तो ज्यादा ओवर करने से या लंबे लंबे स्पेल करने से वो थकेगा नहीं, उसको वो एक्सपीरियंस पहले है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको, पर कप्तान कोई भी हो, चाहे सिंध सेकंड 11 का था, सिंध फर्स्ट 11 का था, पाकिस्तान टीम का था, बाबर था, उन्होंने उसको बहुत यूज किया है। अगर आप इसके स्पेल्स देखो, अभी श्रीलंका सीरीज में भी ये 20-20 ओवर कर जाता था एक इनिंग्स में। तो इसने बॉलिंग तो वहां पे बहुत करनी है। एक चीज इसको पहले समझा के भेज दें जो भी हमारे टेक्नीशियंस हैं या जो भी हमारे एनालिस्ट हैं, कि अगर आप विजिटिंग टीम्स के टॉप विकेट टेकिंग स्पिनर्स देखो इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो कुंबले है। कुंबले ने 8 टेस्ट मैचेस में 44 आउट किए हैं, अश्विन ने 39 आउट किए हैं। कुंबले की बॉलिंग एवरेज 34 है, अश्विन की 42 है, और फिर थर्ड जो स्पिनर है ऑन द लिस्ट दैट इज डैन विटोरी। आई थिंक हाँ डैन विटोरी है, और डैन विटोरी ने 31 पे 31 विकेट्स हैं, 37 की एवरेज है। और उसके बाद फिर आपका दानिश कनेरिया है, इसके 24 में 40 की एवरेज है। अच्छा, तो अब ये विजिटिंग स्पिनर्स हैं दे हु हैव डन वेल इन ऑस्ट्रेलिया, और उनकी अगर आप एवरेजेस देखें तो मोस्टली आई थिंक 40 को टच करें। कुंबले की 34 है, और दानिश कनेरिया की 40 है, और अश्विन की 42 है। तो इससे एक चीज ये पता चलती है
कि रन्स पड़ेंगे, एक विकेट के लिए आपको 40-45 रन देने होंगे, और अगर आप क्विक फायर विकेट, तो आई थिंक रन से नहीं घबराना, यू हैव टू कीप पुशिंग दैट बॉल अप, यू हैव टू कीप ट्राइंग टू लुक फॉर दैट एज, या कुछ ना कुछ आपने देखना। तो आई थिंक अबरार को हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस लिहाज से कि अबरार आके 6 बॉलें एक ही स्पॉट पे कर देता है, उसको मार भी पड़ गई, वो कहीं ना कहीं से वो तरीका निकाल लेता है, क्योंकि उसका टेम्परामेंट और गट्स इस तरह से डेवलप हो चुके हैं। स्किल एक चीज होती है, और फिर उस स्किल को यूज करना विद अ फाइन टेम्परामेंट, वो डिफरेंट चीज होती है। दिस इसके एग्जांपल है, वर्ल्ड कप फाइनल में खेलना सबको आता था, स्किल सबके पास थी, लेकिन टेम्परामेंट्स डिफरेंट थे, टेम्परामेंट का वो विजिबल था। तो अबरार का टेम्परामेंट है ऑफ प्लेइंग लॉन्गर क्रिकेट, बॉलिंग लॉन्गर स्पेल्स, बीइंग अंडर प्रेशर, बीइंग हिट टू द बाउंड्री ऑल द टाइम, ही लव्स टेकिंग ऑन अ फाइट। पहली सीरीज थी उसकी, और इंग्लैंड वर टेकिंग हिम फॉर टू क्लीनर्स, वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे, उसी हिट में उन्होंने उसको 7 आउट दे दिए, ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग लाइन लेंथ कर रहा था। तो आई थिंक इब्रार इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस वहां पे। बस एक चीज उसके माइंड में पहले बिठा दो, वो वहां पे जाके फाइंड आउट ना करे और सरप्राइज ना हो जाए कि बाई चांस रन पड़ने हैं आपको, एक विकेट के लिए एटलीस्ट आपको 40 से 60 रन देने पड़ेंगे, फिर आपको विकेट मिलेगा। जस्ट मुझे यासिर शाह याद आ गया कि यासिर शाह का वहां पे क्या रोल है, वहां पे क्या रिकॉर्ड है। आई कैन नॉट सी यासिर शाह ऑन दिस, ओ माय गॉड। आई थिंक मैं उसका रिकॉर्ड देख के ना, हाँ उसका रिकॉर्ड देख के मैं बताता हूँ। बाकी बाकी जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, नॉर्मली तो ओके, आई थिंक 4 फास्ट बॉलर ऑपरेट करेंगे। अबरार विल बी योर मोस्ट प्रॉब्ली लोन स्पिनर। नुमान को इसलिए रखा है कि नुमान चलो एक्सपीरियंस्ड है, अगर जरूरत पड़ जाती है अबरार जस्ट इन केस अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, तो फिर नुमान भी आपको लंबे लंबे स्पेल करके दे सकता है, सॉरी कस कस के बॉल करता है, उतना टर्न नहीं करता, और उसका वो एक मैड सेकंड इनिंग्स रिकॉर्ड है, मैड सेकंड इनिंग्स रिकॉर्ड है कि उसकी आई थिंक 60-70% विकेट्स हैव कम इन सेकंड इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैच। वहां पे वो लीसल बन जाता है, और वो बड़ा रेलिवेंट भी हुआ था उसमें जब हम श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे, कि पहली इनिंग्स में शायद उसका 100 हो गया था बॉलिंग में विदाउट टेकिंग विकेट, और दूसरी इनिंग्स में शायद 6-7 आउट कर गया गॉल में भी, और उधर उधर तो उसके 10 आउट होने वाले थे सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में पूरा मीटर उसको गालियां दे रहा था, सेकंड इनिंग्स में सबने उसको वो बनाया हुआ था डैन विटोरी, तो उसका एक्सपीरियंस वाइज लेके गए हैं। पर मेरा पर्सनल ये है कि शायद आप सेकंड स्पिनर को यंग बंदा लेके जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो आपका वो खेलना है। बाकी अगर आपने स्पिन करवानी है, मतलब अगर 70 ओवर हो गए हैं और न्यू बॉल आने वाला है, अबरार भी थका हुआ है, फास्ट बॉलर भी थके हुए हैं, तो आप साउथ से बॉलिंग करवा सकते हो। आप आई थिंक आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी, आई थिंक दूसरे ऑप्शन में नोबडी बॉल, दो बैटर बॉल्स। बाबर डस। हाँ बाबर के पास ऑफ कोर्स केरी की विकेट है, तो maybe Shan will have to keep that in mind as well कि maybe अगर केरी वहां पे कहीं रुक जाता है, पार्टनरशिप ब्रेकर है आपके पास एक ट्रम्प कार्ड। खैर वो तो पार्ट टाइम स्पिनर्स की बात थी। जस्ट यासिर शाह का रिकॉर्ड में आपको बता देता हूँ, इन द मीनवाइल यू कैन मूव ऑन। श्योर थिंग। हाँ एक और चीज है, लायन पता नहीं टीम एनालिस्ट कौन है, बट जो भी है, या जो भी मैनेजर, अब रेहान तो होगा नहीं, क्योंकि रेहान इस तरह की बातें देखता था, ऑफ कोर्स वो देखता होगा कि नेल्सन लायन ने पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस में वहां पे क्या किया है। आप फुटेज निकालो, आप नंबर निकालो, आप वो लाइन एंड लेंथ देखो, आप वो ट्रेजेक्टरी देखो, और यार इतने फ्रीलांस एनालिस्ट फिरे हैं, क्रिकविज है, अब डेटा मंगवाओ, और आप अपने सारे बॉलर्स को, स्पेशल स्पिनर को भी दो कि लाइक क्लास स्पिनर को किस किस टाइम पे स्पिनर ने आउट किया है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इट वाज, कौन से सेशन में बॉल हो रही थी, फील्ड प्लेसमेंट्स क्या थी, कौन सी विकेट स्पिनर्स को क्या करती है, लाइक ये मुझे भी आइडिया आ गया। आई लुक इनटू द फैक्ट के पथ के अंदर स्पिनर्स का क्या रिकॉर्ड है, या एमसीजी या एससीजी में, तो वो चीज भी हो सकती है कि आप मेंटली इन सबको तैयार कर दो। लाइक मेरे पास ये नंबर सारे खुले पड़े हैं, अगर आप देखो कि लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा ना होम पे, वो 2 टेस्ट मैच हारा है, वो 2 टेस्ट मैच है, दोनों इंडिया ने हराए हैं, तो वो दोनों टेस्ट मैच वर, एक टेस्ट मैच सीरीज का 3rd था और एक 4th था, फर्स्ट सेकंड में कोई नहीं हरा सका। आई थिंक 18 ऑनवर्ड्स अगर आप देखो तो ये 4-5 सीजन है, बल्कि उससे पहले भी शायद साउथ अफ्रीका ने उनको 2012 में हराया था, जो ग्रैम स्मिथ की टीम थी, वो बड़ी अच्छी टीम थी। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इम्पॉसिबल है। अगर आपने हराना भी है तो आप जाके सीरीज के एंड पे हरा सकते हो उनको टेस्ट मैच, और वहां पे भी वो आपको खेचेंगे, और वो इसलिए हराते हो आप, जो इंडिया ने हराया है, एक एससीजी टेस्ट में हराया है और एक ब्रिस्बेन टेस्ट में हराया है, और वो इस तरह से हराया है कि तब तक इंग्लैंड इंडिया को पता चल चुका था
तब तक वो उनको खेल भी चुके थे. जब आप 2 मैचेस में किसी को खेल लेते, तीसरे में यू एक्सपेक्ट टू डू. Yeah. तो आई थिंक पाकिस्तान शुड स्ट्रांगली टारगेट एमसीजी एंड एससीजी टेस्ट इन टर्म्स के हमने उसको हराना है. फर्स्ट टेस्ट में आप लिटरली ये माइंड बना के चले जाएं, क्योंकि पिछले सीजन का जो पहला टेस्ट मैच है, अगर आप वो देखें, दैट वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, जो पिछले सीजन का पहला 5 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया ने, और पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एट पर्थ. अब अगर आप स्कोर कार्ड से ही आपको अंदाजा हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई, 598 का फट्टा लगा रही है. वेस्ट इंडीज टीम ने सिर्फ 4 आउट किए. फिर उन्होंने बॉलिंग की, 283 पे टीम को ऑल आउट कर दिया. वेस्ट इंडीज का फर्स्ट इनिंग स्कोर एट पर्थ वाज 283. इट विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान उसको क्रॉस करता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आर अ फार बेटर साइड देन वेस्ट इंडीज. और फिर उसके बाद देखो ना, पहले जो टेस्ट मैच था उसमें 20 आउट किए और 800 रन किए. तो ऑस्ट्रेलिया की ये स्ट्रेंथ है, वो रन करेंगे, सारे विकेट लेंगे. फिर दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टुक ऑल 20 विकेट्स एंड दे आल्सो स्कोर्ड 700 रन्स. तो ऑस्ट्रेलिया सीजन के पहले 2 टेस्ट मैचेस में इतना लीथल होता है, आप कोई भी सीरीज उठा के नहीं. तो आप पर्थ को निकाल दो, पर्थ में सिर्फ आप एक किस्म का, ठीक है, अटैक भी करो, लेकिन ट्राई टू सर्वाइव, ट्राई टू गेट ऑन द नर्व्स छोटे छोटे पैचेस में. और फिर उसके बाद आप एमसीजी और एससीजी को टारगेट करो. एससीजी पे तो यू कैन टारगेट अ विन. और इस पॉइंट पे डॉक्टर ऋत्विक को वेलकम करते हैं. डॉक्टर ऋत्विक, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन. शफकत भाई, वेरी शॉर्टली, क्योंकि हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव आउट करना है. व्हाई इज नवाज, शबाब और इमाद वसीम नॉट कंसीडर्ड फॉर टेस्ट? वेरी शॉर्टली शफकत भाई. यार वो इसलिए नहीं किया कि नवाज तो हम 2016 में हमने शायद उसको 16 में 17 में उसको हमने टेस्ट डेब्यू करवाया था, और नवाज को हम उस तरह से रेड बॉल में यूज नहीं कर सके. यूएई में खेला था. मुझे लगता है कि उसको हम ले गए थे ऑस्ट्रेलिया भी एक टेस्ट सीरीज के लिए, मिसबा लेके गया था 16 वाली सीरीज में. वरना उसके अलावा हमने उसको लास्ट टाइम यूज किया था श्रीलंका के खिलाफ. तो आई थिंक नवाज को हम उस तरह से देखते नहीं है एज अ स्पिनर. और ऑस्ट्रेलिया में आपको एक लीड स्पिनर चाहिए, तो वो आपका इब्रार है. शदाब तो उसको हमने डिस्कार्ड किया हुआ 2020 से, और इमाद वसीम ने कभी टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है. उसने सारी फर्स्ट क्लास खेली है, बट वो हमेशा मेनली वाइट बॉल रहा. Yeah, wonderfully put. So it is about the time that we move out to last segment. अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा. I will brief it out then. 89 हुसैना प्लीज मुझे जी शफकत भाई, were you about to say anything? मैं वो यासिर शाह की मैंने बॉलिंग देखी है इन ऑस्ट्रेलिया. 5 टेस्ट मैचेस, 12 विकेट्स एंड 89 एवरेज. तो उसको 1 विकेट 90 रन की बदौलत मिल रही थी. तो वेस्टिंग स्पिनर्स के लिए इट्स वेरी टफ. Maybe they'll have to, अबरार को वो बता दें कि you'll have to take a leaf out of Kumble, Ashton and Canadians book. Yeah, wonderful inputs again. So that is the time for our live poll, which read as Pakistan test record is either bad, either good, or average. This time, 57% people are going with good, 14% are going with bad, and 29% are going with average. Last segment is around to pick up the strongest possible 11 for Pakistan in first test. पूरी सीरीज के लिए. तो शफकत भाई, are you ready to announce your first test XI for Pakistan? You're on mute. शफकत भाई, you are mute. Sorry. मैं ये देख रहा था कि आपके पास जो ओपनर है, जो ओपनर है, आपका जो वो एक आइडियल वो चल रहा है, दैट इज इमाम एंड अब्दुल्ला. और ओके यार फिर वही बात आ जाती है कि या तो आप इमाम के साथ जाओगे, तो वो ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है,
but you cannot throw Saim to the Bulls as well. लेकिन Saim exciting भी हो सकता है. I would like कि ठीक है Saim को कहीं ना कहीं पे देखें हम सीरीज, but not to begin with. वो mentally rattle ही ना हो जाए. Good that he's on the tour, he'll be with the team. बाहर से देख रहा होगा कि क्या pressure होता है. लेकिन पहले टेस्ट में let's go with Imam. ठीक है, one day cricket was a separate thing. Let's एक fresh start करते हैं और hopefully Hafiz उसको ही ले जाएगा. और साथ अब्दुल्ला शफीक of course. Then comes Shan and then we have Babar Azam. Okay. At 4 we have Babar, and then 5 we have got Southfield. Okay. All right. Number 6, Rizwan. Yeah, number 6 I'll go with Rizwan any day of the week. Number 7. Sorry to cut you off, Shafqat bhai. Sorry to cut you off. A debate over Rizwan versus सरफराज, आप वन लाइनर कैसे फेवर आउट करेंगे रिजवान को? वन लाइनर. रिजवान कैन स्कोर रन्स, रिजवान कैन कीप विकेट्स. मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि 3 टेस्ट मैच है, उसमें 800-900 ओवर होने हैं. जिसने करने हैं तो पकड़ने वाला पीछे एक बंदा ही होगा, तो 600-700 ओवर. तो सरफराज गुड एज अ बैकअप. या तो आप इस तरह कर लें कि 2-1 कर लें, क्योंकि थक तो जाना है जिसने भी करना है. तो कोई भी इन दोनों के लिए टफ होगा टू गो थ्रू ऑल 3. या तो फिर आप रिजवान को न्यूजीलैंड सीरीज में बाहर बिठाएं और इसको कहें आप तीनों टेस्ट मैच खेलो स्पून से, और उसके बाद विल गिव यू अ ब्रेक. तो बट टू बिगिन विद मेरा टेस्ट क्या होगा ना, अगर देखने के लिए लेके जाना है, जीतने के लिए जाना है, यू नीड समबडी हु कैन पुट हिज हार्ड यार्ड्स इन, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट की इंटेंसिटी के साथ वो एक्लेमेटाइज्ड है ऑलरेडी. तो वो रिजवान है. आई गो विद रिजवान. ऑलराइट. Then number 7, Salman Agha, right? No, tough on Salman Agha, but I'll go with Fahim Ashraf. Salman gives you off spin देता है Salman, but आपको वहां पे चाहिए, like मुझे ऑलराउंडर चाहिए फहीम अशरफ. तो I'll go with Fahim, क्योंकि साथ में 3 पेसर रखूंगा और एक स्पिनर रखूंगा, तो मैं 4 पेसर्स के साथ जाऊंगा. सलमान को अगर आपने लाना भी है तो यू कैन थिंक ऑफ हिम इन और रियली एमसीजी, बट एससीजी टेस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी कंडीशन इस तरह हो जाती है. अगर आपको पता हो शेन वॉर्न का जो डेब्यू हुआ था ना, वो एससीजी में हुआ था, न्यू ईयर्स टेस्ट में. एससीजी एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे स्पिन थोड़ा काम करती है, जहाँ पे हमने देखा है कि 2 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन चलता है. टीम सोचती है, होम टीम भी और विजिटिंग टीम भी. तो वो और होता भी वो तीसरा टेस्ट मैच है. एमसीजी में भी थोड़ा स्लो विकेट होता है, क्योंकि वो कौन सी विकेट होती है यार, ड्रॉप इन विकेट है. तो वहां पे भी यू कैन हैव अ स्पिनर, बट स्टिल यू विल नीड योर फास्ट बॉलर्स. तो वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं. बट टू बिगिन विद इन पर्थ आई विल गो विद फहीम अशरफ एंड पोलाइटली आस्क सलमान भाई टू सिट आउटसाइड. ओके, देन फिर अब्रार अहमद आ जाएंगे, राइट? आप जब कप्तान बनो या आप ऑन द रिसीविंग एंड हो ना. फैसलाबाद में मैं अंडर 19 मैच खेल रहा था जंग के लिए. हम पीछे सरगोदा में खेल के आए, वहां टीम का हिस्सा था. हम फैसलाबाद आए हैं, एक दिन पहले ट्रेनिंग किया, रात को होटल गए. मुझे नहीं पता टीम मैनेजमेंट के माइंड में क्या चल रहा है, कोच और कैप्टन के. अगले दिन आए, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं रात को प्लान कर रहा हूँ मैंने इस तरह बॉलिंग करनी है. जब टीम और ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे उन्होंने कहा यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द 11. मेरे माइंड में तो 2 दिन खेलूंगा, मगर अब 2 दिन पानी लेके चल रहा है. ये तो हम देखते हैं ना, टीवी ऑन किया मैच लग गया, लेकिन पीछे जो लोग हैं ना, कोचेस, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग. एवरीवन, क्रिकेट आपको बहुत सरप्राइज करती है हर मोमेंट में. तो लाइक आप सरप्राइज होते हो. तो बताने वाले को ये होता है कि यार अब इसको बता दिया, इसके साथ आंखें कैसे मिलाऊं मैं कि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया. पर जो नहीं खेल होता उस सेल्फलेस तो लोग होते ही हैं, लेकिन कोई ना कोई होता है यार मुझे खिला लेते या मैं हो सकता. तो खैर इसलिए मैं फहीम के साथ जाऊंगा. ओके, ऑलराइट. 8वें नंबर पे इब्रार मैंने पुट आउट because he can bat out as well, right? हाँ, he can bat out as well and he puts on a great show with the bat. हमने वो श्रीलंका में देखा था. And I would have loved to see यार, तो नसीम होता ना, क्या मजा आना था यार. We would have been a strong team, like really strong. We would have rattled Australia यार. Like नसीम इस तरह का बंदा है ना, वो एक बंदा ही अगली टीम पर चढ़ जाता है. वो
बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। वो कहता है कि मैं नहीं करना है, मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, आई टेक माई टीम आउट, बट एनी हाउ वो यहाँ पे नहीं है। अबरार के बाद विल गो शाहीन आफरीदी। All right, T20I captain. Then number 10. Noman तो नहीं। और जो फास्ट बॉलर, उसमें मैं ये देख रहा था कि एक्सपीरियंस वाइज जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं या जो लंबे अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है या जिसको ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब तो मैं हसन के साथ जाऊंगा टू बिगिन में। ठीक है, मैं किसी रूकी को उस तरह से अब उस स्पॉट पे नहीं पुट करूंगा। ठीक है, एक और रूकी साथ आ सकता है, बट आई गो विद हसन, क्योंकि हसन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस दफा खेली है इंग्लैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में उसका एक 5 विकेट हॉल है इफ यू रिमेम्बर उस सीरीज में, 16-17 वाली सीरीज में। तो वो कर सकता है, तो ऊपर ऊपर से आपने उसको रखा इस तरह, तो यू हैव टू प्ले हिम, यू हैव टू प्ले हसन वहां पे। अच्छा, अब लास्ट में क्वेश्चन है कि आमिर जमील नहीं, आमिर जमाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, बड़े खिंच के बॉल करता है, हिट द डेक हार्ड है, उसकी बॉल निकलती भी है। उसके बाद आपका वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर की बॉलिंग परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी वर्ल्ड कप में, एक बड़ा उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है खुरम शहजाद है और मीर हमजा है। तो मीर हमजा, ये 4 लोग हैं इस यहाँ पे। मीर हमजा का वहाब कह रहा था कि अगर जस्ट इन केस कोई मसला होता है तो न्यू बॉल के साथ आप उसको भी लेके आ सकते हैं, बट गिवन कि यहाँ पे हसन है या कोई इंजरी हो जाए तो फिर हम मीर हमजा को लेके आ सकते हैं। खुरम शहजाद कैन भी, अगर आप बैकअप स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद खुरम शहजाद एज वेल, लेकिन उसके लिए टोटली एलियन कंडीशंस होगी। आई लाइक खुरम शहजाद, मैंने उसको ग्रो करते देखा है, बट टू बिगिन विद आमिर जमाल का भी मैं चाहता हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, बट जिस तरह का चैलेंज है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी बंदा खेला हो, तो आई टेक द पॉइंट ऑफ पिकिंग अप वसीम जूनियर। ठीक है, उसने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, मगर वो ऑस्ट्रेलिया में था लास्ट ईयर, और उसने नेदरलैंड्स के खिलाफ T20 मैच भी खेला हुआ है पर्थ में, तो आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो इस तो। और मुझे लगता है कि वसीम के ऊपर, ठीक है वो रन्स खाता है, मगर मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो टेम्परामेंट और ग्रिट के साथ खेलता है। इस तरह के लोग आपको चाहिए। आपको वसीम तो नहीं, नसीम शाह तो नहीं मिल सकता, बट नसीम इज समवॉट क्लोजर टेम्परामेंट वाइज के वो विल कम इन, और उसको आपने लास्ट टेस्ट कैप भी दी थी, और आपने टेस्ट कैप इतनी दे दी है, तो बेटर कि जिसको आपने लास्ट टाइम टेस्ट कैप दी है कराची टेस्ट में, अब आप उसी के साथ जाए, उसी को खिलाएं, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट कैप अभी ना रहे, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट। ये मेरी फाइनल 11 होगी। Yeah, makes sense. Wasim Junior has an experience in Australia as well, because वो T20 में भी अच्छा किया था, फॉर्मेट अलग है, but he knows the conditions, I would say. So yeah, good, I would say. Okay. I think I lost you guys on Mir Hamza point. Shafqat bhai, last player आपका Mir Hamza था ना, right? To put out in the graph. Wasim Junior. Not Miracle, but I was going with Wasim Junior. Oh, that's an interesting choice. Okay. Even though okay. Mir Hamza has played that under-19 वर्ल्ड कप, वो बाबर के साथ था वहां पे, Yeah. उसका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। बस मीर हमजा को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट जस्ट समथिंग इन मी सेज कि मतलब टू बी इन द स्टेडियम, टू हैव ऑलरेडी प्लेड अ कम्पिटिटिव गेम इन ऑस्ट्रेलिया, टू हैव ऑलरेडी विजिटेड ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम वी वर देयर टू प्ले, आई एम गोइंग विद वसीम जूनियर की। उसने बताया है कि वो 10-10 ओवर के स्पेल अच्छे कर रहा था, तो आई थिंक विल हैव टू ट्रस्ट हिम एटलीस्ट फॉर फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद फिर आप चेंजेस कर सकते हो। Okay, perfect. So viewers, here you can see the final exercise from chief selector for now, team director for now, team coach for now, Shafqat Shabbir. That is, thank you, Shafqat bhai, for cooperating with this stuff. Okay, I have put my bias in. Anyway, Shafqat bhai ka jo last option hai, that is Mohammad Wasim Junior. My bias took over, but once it goes out to the social media, we will replace it with Wasim Junior. Meanwhile, viewers, you can also let us know your preferred XI in the comment box as well. Ritvik said another comment, although I put it out on screen, it was around Saud Shakir and Salman Adiaga. I think so. There is not much debating over it. And
if you have, you can already go back to the show. So yeah, I think so. It is the time to say goodbye to viewers first of all, but more importantly, with much thanks, Shafqat by wonderful session, an hour-long session. We could still go long, but I think so that is a एक perfect चीज note. मैं यहाँ पे, सॉरी टू कट यू ऑफ, सिर्फ एक चीज, बॉलर्स की हमने बात की है जो वहाँ पे बड़े अच्छे हैं जिन्होंने वहाँ पे रन किए हैं। सिर्फ मैं ओवरसीज बैटर्स की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके 2000 ऑनवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उसमें लेस्टर कुक, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, केविन पीटरसन, द्रविड, सहवाग एंड, हाँ ये लोग हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर रन किए टेस्ट क्रिकेट में। तो लाइक हमारे बैटर्स को, लाइक बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूँ कि प्लेयर शुड बी नर्ड, प्लेयर को पता हो, ठीक है आपने बाहर जाके ट्रेनिंग कर ली, आपने नेट सेट कर ली है, लेकिन वंस यू कम बैक इनटू द रूम ना, तो आप कुक की वो गाबा वाली 256 रन की देखो यार, देखो वो किस तरह से अप्लाई कर रहा है, इस तरह की लिस्ट निकाल के देखो, इट विल पुट यू इनटू स्टैट कि मैंने उन प्लेयर्स को देख ली जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मारा है, तो आई शुड ऑल्सो बी डूइंग दैट। तो साइकोलॉजिकली भी आप इस तरह कर सकते हो। इस लिस्ट के अंदर ना टॉप पाकिस्तानी बैटर्स टू स्कोर मोस्ट रन्स इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2000 है, यूनुस खान है, उसके 557 रन है एट 50। यार ऑस्ट्रेलिया में जाके 50 की एवरेज है यूनुस खान की टेस्ट मैचेस में। उसके बाद सलमान भट्ट है, उसके 500 रन है, अजहर अली के 468 रन है, और असद शफीक के 381 रन है, और यूसुफ के 367 रन है, और यूसुफ का एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 100 भी है, वन ऑफ द बेस्ट यूसुफ 100s। तो आई थिंक हमारे है ना, उनको यूनुस खान की इनिंग्स निकाल के देखनी चाहिए, वो एसजी वाली, सलमान भट्ट का 100 देखना चाहिए, अजहर अली का आई थिंक डबल 100 था, और असद शफीक का वो गाबा वाला मैच देखना चाहिए, और यूसुफ वाला, मतलब जस्ट मेरी पर्सपेक्टिव है, तो आप यू कैन से कि मैं रॉन्ग भी हूँ, मतलब टीम मैनेजमेंट ये छोटी छोटी चीजें कर सकता है। अगर आपने वो द टेस्ट देखी हो ना, तो ग्राउंड जाने से पहले या मैच से पहले स्क्रीन लगा के एक बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें आपको बताते हैं। लाइक इफ इट वाज अप टू मी, आई वुड एटलीस्ट छोटा सा लाइक टाइम लेके सबसे, आई वुड उन सबको इकट्ठा करके बिठा के, चलो जी आज हम यूनुस खान की वर्डिंग्स देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट के व्हाट वर्कड फॉर यूनुस एंड व्हाट डिडंट वर्क फॉर यूनुस, या व्हाट वर्कड फॉर यूसुफ। आप एचडी में चला दें यूसुफ की बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वाली, तो साउथ स्कील को शायद नहीं पता होगा कि ऑलरेडी हमारे किसी प्लेयर ने उनको चैंप आउट किया है एट एमसीजी, बिगेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच वाइज। तो शायद वहां से जो आपके जो 4-5 बैटर्स बैठे हैं उनके माइंड में आ जाए कि यार यूसुफ भाई ने एमसीजी में 100 किया था, मैंने भी करना है, यूसुफ भाई ने ऐसे खेला था, यूसुफ भाई मैगरा वॉर्न और उन सब लोगों को मारा था, तो शायद मैं भी हैजलवुड था। तो ये साइकोलॉजिकली इन फ्रंट्स पे भी अगर हफीज काम करे, प्रोफेसर तो वो है ही ना, रियली होप कि वो ये बात शायद कोई उस तक पहुंचा दे, या आई वोंट ट्राई। थोड़ा पैटी लगता है कि अब क्यों, क्योंकि मैं कोई ऐसा कोई कोच नहीं हूँ, बट ये छोटी छोटी चीजें यू कैन ट्राई आउट, थोड़ी सी इंस्पायरेशन ही लेनी, आपको कहीं से भी आ सकती है। And also the fact that Australia has, sorry to cut you off, but also the fact that Australia has Ricky Ponting as mentors, that they come into the dressing rooms and they have sessions because they are mentality masters. So एक time वो एक breed उनकी चलती आ रही है, तो I think Pakistan should also learn from them कि उनकी techniques employ करें. I think we could be a better side if we learn from the Australian side how they manage it. So yeah, I really like it. And Shafqat bhai, quick fire, like 10 seconds. Overall rating इस स्क्वाड को क्या देंगे? 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10. Options बता दें फिर exact number बता. I'll give it 5 to 7. Available resources आपके पास यही हैं, इसी को आप थोड़ा सा मैन्यूवर करके चल सकते हो, तो थोड़ी प्रेप वाइज मैं नंबर काटूंगा। अवेलेबल रिसोर्सेज वाइज ठीक है, आपके पास यही लोग हैं, नसीम शाह इंजर्ड है, अवेलेबल तो वो प्लस माइनस करके आई वुड गिव देम 6 और 7, लेट्स गिव देम, क्योंकि यू हैव गॉट एक्सपीरियंस। इस दफा हमारे पास वो प्लेयर्स भी हैं, 4 या 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला हुआ है, उनको पता होगा कि वहां पे किस तरह का सीन चलता है। और हाँ, सबसे एंड पे जस्ट टू लाइक हैव सम फन, उनको यासिर शाह का 100 भी दिखा दूं, तो ये कि भाई यासिर कैन स्कोर 100। यार ऑस्ट्रेलिया का हम कहते थे मेंटालिटी मास्टर्स, लेकिन मेंटालिटी छोटी छोटी चीजों से बनती है।
I sit down with my players, I talk to them कि somebody did this. Brian Lara इस चीज की बात करता था कि आपने you have to cook it all up in your mind. आपने सोचना है, and Brian Lara borrowed this technique from Michael Jordan, जिसमें माइकल जॉर्डन भी आई थिंक ये कहते हैं, बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि माइकल जॉर्डन यूज्ड टू थिंक कि यार कल जब मैं मैच खेल रहा हूँ तो मैं फलां प्लेयर की यहाँ से बॉल निकालूंगा और यहाँ से ऐसे, और मेरा फाइनल मूव होगा उसको वो माइंड में शेप अप कर लेता और आगे लाइक इस तरह करना है. और लारा का भी शायद एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मैं अक्सर ढूंढता हूँ वो आर्टिकल दोबारा मिल जाए, शायद क्रिकेट इन्फो पे कहीं नीचे आर्काइव्स में पढ़ा है. उसमें लारा भी ये कहता है कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस पीरियड ना इस तरह से, तो शायद मुझे कौन सा प्लेयर मिला था जिसने बताया था कि यू हैव टू थिंक अबाउट योर बेस्ट ड्राइव, यू हैव टू थिंक अबाउट द मोमेंट यू आर पुटिंग योर बैट अप फॉर द 100 सेलिब्रेशन. तो जितनी आप पहले इमेजिन करोगे उसको फिर ट्रेनिंग के साथ जब आप वेड करते हो उस चीज को, तो ऑफ कोर्स ड्रीम्स डू कम ट्रू. Yes, manifestation works. आपने इस तरह बनना है. अगर आप like if you are a donkey working all the time in the nets, that is the first requirement of cricket, to be a donkey, to work in nets, to train all day long, to work on your fitness. But उसके साथ fitness भी sorry mental strength और mental जो एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. एक प्लेयर के माइंड में आ जाए ना कि मैं 98 पे खड़ा हूँ और मुझे फ्री, मैंने उसको अच्छे से यूज करा. अगर एक प्लेयर को 0 पे खड़ा है, मतलब आपकी माइंडसेट बहुत मैटर करती है यार क्रिकेट में. माइंडसेट पे बात करते, जिस दिन माइंडसेट शार्पन हो जाएगी ना, ये प्लेयर्स हैं, they will become the Australia of world cricket, but that seems impossible. Teams should have sports psychologists with them, I would say. Like स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट तुम्हारे साथ वर्ल्ड कप में भी था, बट आई थिंक इट कम्स डाउन. that was not a sports psychologist, that was not a sports psychologist, that was just a psychologist. So या आई थिंक थिंक टैंक पे आती है ये काम, जो शार्पन करने वाले मेंटली. वो थिंक टैंक बैठे 4-5 लोग और प्लेयर्स के साथ बातें करें, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, को बताएं कि इस स्टाइल ऑफ क्रिकेट को हमने लेके चलना है, तो वो बड़ा अच्छा होता है. Okay, perfect guys. So yeah viewers, I think मैं इसे लेआउट पे एंड करना चाहता हूँ because that is what ARD is all about, from insights to funds to content like that, and that is the whole point, जहाँ पे मैं conclude करना चाहता हूँ because viewers at the end you are biggest inspiration for all of us. And आप इंस्पायरेशन कैसे बनते हैं? डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर. Thank you so much, Shafqat bhai, for a like 1 hour and 15 minute session. We were not supposed to do this long, but it has been lovely to every bit. Keep inspiring us through your wonderful work on Twitter. And I must not forget, our football team will go in action tomorrow, 2 baje दोपहर, on Jinnah Stadium. Good luck to them from all of us, from Shafqat bhai, from Hussaina, from whole ARD. So yeah, on that a new football fan as well. I really got into football because of them. yeah, we must. So yeah, on that note, viewers जितने सलामत हैं, best of luck Pakistan men's team. Pakistan women's team will be in Sana in round about same time. We will be putting content hopefully for them in quick turnaround as well. So yeah, viewers, goodbye and Allah. Hafiz.